शत एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। जय हिंद। I would now read the preamble in English. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Jai Hind. I would now like Niyati to please introduce our esteemed speaker, Alka ji, today to everybody. Over to you, Niyati. It gives me immense pleasure to our speaker for today, Alka Lamba ji. Alka Lamba ji is a former president of Delhi University Students' Union, former national president of National Students' Union of India, former General Secretary of Delhi Pradesh Congress Committee, and former Secretary of All India Congress Committee. She has also served as the Vice Chairperson of National Institute of Public Cooperation and Child Development, an autonomous body of Ministry of Women and Child Development, Government of India. In 2015, she successfully contested the Delhi Assembly elections from Chandni Chowk constituency and won by a margin of over 18,000 votes. She is the chairperson of NGO Go India Foundation, which became famous for its blood donation drive, in which 60,000 people donated blood in a single day. One of the most active Congress leaders on ground, Ms. Alka Lamba, thoroughly understands the pulse of the people on ground. As a former legislator herself in an assembly that had overwhelming majority of the ruling party, Ms. Alka Lamba is the most suitable person to address us on this topic. Thank you. Alka ji, I want to start straight away by talking about what is happening today on this amazingly glorious day, on Republic Day in our country, about the farmers' protest and the peaceful march that they intended to take out. And इसमें हम देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट और दिल्ली पुलिस उनके साथ क्या कर रही है. एंड आई थिंक हम जानना चाहते हैं व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इट, एंड क्या मतलब आपके दिमाग में इस पर क्या चल रहा है. देखिए क्या हो रहा है, मुझे लगता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि युवा देश दिल्ली पूरी तरह से मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया, फोन, व्हाट्सएप से कनेक्ट है और सीधा आज जो कुछ भी भारत की राजधानी दिल्ली में और खास तौर से आज के दिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस वाले दिन हुआ है, मैं कहूंगी दुर्भाग्यपूर्ण है. इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा रही थी. पर मैं ये भी सवाल उठाती हूँ, नौबत क्यों आई? ये आज का जो कुछ भी हुआ है वो हम क्या टाल सकते थे ऐसा होने से? तो मुझे लगता है कि हाँ, हम आज जो दृश्य गणतंत्र का पूरे विश्व ने देखा है, किस तरह से किसान अन्नदाता सड़कों पर है, उससे हम लोग जो हिंसा हुई है, किसान की जान भी उसमें अभी तक मेरे पास जो खबर है वो चली गई है गोली लगने से, इसे टाला जा सकता था. कैसे? अन्नदाता आज अचानक 26 जनवरी को दिल्ली में नहीं आया. वो 26 से 27 नवंबर को लगभग 2 महीने से अधिक समय पर दिल्ली की दहलीज पर बैठा हुआ है, शांतिपूर्ण बैठा रहा. कोई भी एक हिंसा पिछले 60-65 दिनों में नहीं हुई. बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीकों से, लोकतांत्रिक तरीकों और गांधीवादी तरीकों से चल रहा था. 2 महीनों से 135 के करीब किसान ने ठंड में, खुले में, बारिश में अपनी जान भी गंवा दी. बहुत लोगों ने जो है, मैं उसको ठीक नहीं मानती हूँ, लेकिन बहुत से लोगों ने अपनी जान तक जो है सुसाइड किए. गलत है, नहीं होना चाहिए, बट वो भावुक हुए, लड़ाई लंबी थी, हुआ. बात ये है कि ये टाला कैसे जा सकता था कि जब वो 2 महीने पहले आया था अन्नदाता, वो आपसे बात करने आया था, आपने उसे दिल्ली की दहलीज पर रोकने की बजाय उससे बात की होती.
लेकिन हुआ ये कि इस किसान से बात करने की बजाय पूरी कोशिश 2 महीनों में ये रही, इन्हें खालिस्तानी बताया जाए, इन्हें आतंकी, नक्सली, देशद्रोही बताया जाए और चंद मुट्ठी भर किसान ही है जो इस कृषि कानून से असंतुष्ट है, ये साबित करके पूरी तरह से जो है कोशिश होती रही, जबकि कोशिश दूसरी तरफ होनी चाहिए थी। ठीक है, सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी, 3 मंत्रियों ने 11 बैठकें की और 11 की 11 बैठकों का कोई नतीजा भी नहीं निकला। नतीजा इसलिए नहीं निकला कि किसान सिर्फ एक ही मांग लेकर आए थे कि इन 3 काले कानूनों को आप तुरंत वापस लीजिए और न एक और कानून जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून है वो लेकर दोबारा से आप संसद में इसे पेश करिए। अब सुप्रीम कोर्ट भी लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने इन आंदोलनकारियों को यहां से उठाने से बिल्कुल कह दिया ये इनका लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है, लोकतंत्र के तहत हम उन्हें उठने को नहीं देंगे। नंबर 1, कोर्ट ने ही सुप्रीम कोर्ट में आगे आके सबसे पहले इन 3 काले कानूनों को जो है, जो किसान कह रहा था उनके लिए डेथ वारंट है, उसकी गंभीरता को समझते हुए इसको रद्द कर दिया, इस पे रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या किसानों से इस कानून को लाने से पहले सरकार ने बातचीत की थी? उसका भी जवाब केंद्र सरकार ना कोर्ट में दे पाई, ना आरटीआई सूचना के अधिकार कानून में जब पूछा गया कब कब मीटिंगें सरकार की जो है किसान संगठनों से हुई, किन किन संगठनों से हुई और क्या मिनट्स हैं, क्या चर्चा हुई किन मुद्दों पे, वो मिनट्स जारी करिए, तो आरटीआई में भी ये जवाब मिला कि सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर भी एक बार खुद सरकार जो है वो झूठी साबित हुई कि उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लग रहा था 5 जून का दिन हमें याद है, जब तालेबंदी में हम सब कोरोना महामारी से लड़ रहे थे, तालेबंदी था, सब घरों में बंद थे। 5 जून को प्रधानमंत्री जी कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं और उस कैबिनेट की मीटिंग में अध्यादेश ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये कानूनों को लाकर थोप दिया जाता है। हाहाकार उस समय भी हुआ, लेकिन तालेबंदी थी, बहुत ज्यादा लोग सड़कों पर नहीं थे, इसलिए पता नहीं आम जन को लगा कि ये कानून 5 जून को अध्यादेश से लाएगा। फिर हमें लगा चलिए पार्लियामेंट का सत्र आ रहा है, उसमें डिस्कशन होगा, उसमें पूरी चर्चा होगी, किसानों के जो कंसर्न है, लोकतंत्र में चुने हुए जहां से कानून बन रहा है वहां पर चर्चा होगी। लेकिन कहा गया कोरोना काल है, प्रश्नकाल नहीं होगा, वोटिंग नहीं होगी, 303 का बहुमत है केंद्र के पास, उस बहुमत के दम पर मैं कहूंगी अहंकार है, उसको लागू कर दिया गया। सोचा अब दिल्ली की दहलीज तक किसान आ गया, अब विंटर सेशन होगा, उसमें चर्चा हो जाएगी। सरकार ने कहा विंटर सेशन ही रद्द कर दिया। ये पहली बार इतिहास में कि शीतकालीन विंटर सेशन ही नहीं हुआ, क्योंकि सरकार के पास जवाब नहीं थे इन काले कानूनों पर। अभी हमारी फिर मैं कहूंगी हल अभी भी है, मैंने खुद अपील की है, अब मैं इस मुद्दे पर आ रही हूँ, प्रधानमंत्री जी तुरंत आगे आए, किसानों से एक अपील करें कि शांतिपूर्ण तरीकों से वो वापस जाएं। हम 24 घंटे में कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर इनके ऊपर कानूनों पर हम पूरी तरह से रद्द कर रहे हैं। बजट सत्र शुरू हो रहा है, किसान अपना बनाया हुआ खुद का कानून ड्राफ्ट करके सरकार को दे, सरकार अपनी कमेटियों पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपे, व्यापक चर्चा हो जाए। और एक दिन लगेगा, मुझे लग रहा है जब सबकी सहमति होगी तो बहुत बहस नहीं होती, पार्लियामेंट में एक दिन में बजट सत्र में नए कानून आ सकते हैं और ये सारा जो बवाल है वो थम सकता है। मैं अब शुरू से एंड तक मेरा ये कहना है इस विषय पर। लेकिन आपको लगता है कि मतलब आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल ही सही बात है, बट आपको लगता है कि ये जो हमारी सरकार है इस वक्त, जिसका पूरा मुद्दा ही ये होता है कि वो मेन मुद्दे से हमेशा हट के बात करना चाहते हैं, उस मुद्दे के अराउंड वो कोई ना कोई ऐसी चीज क्रिएट करना चाहते हैं जिससे हमने पहले भी देखा है ये हर प्रोटेस्ट में और अब भी हम यही देख रहे हैं कि वो डेमोक्रेटिक राइट खत्म करना चाहते हैं। इसमें आपको क्या लगता है कि ऑपोजिशन किस तरीके के मेजर्स ले सकती है ताकि हम मतलब उनकी मदद कर सके, क्योंकि ये तो डेमोक्रेटिक राइट है, तो पीसफुल राइट टू प्रोटेस्ट, तो हाउ कैन द ऑपोजिशन हेल्प and influence the government to take the right step, at least be a powerful source कि government एक बार रुक के सुने। देखिए, आपने कहा आप कैसे माने मैं सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, मैंने कोई कहानी नहीं बनाई, मैंने जो फैक्ट्स हैं, जो जमीन की हकीकत है, कब किसान आया, कितनी मीटिंग हुई, क्या कोर्ट ने कहा, सरकार क्यों कब अध्यादेश के जरिए कैसे लाई, वो सब फैक्ट्स हैं जिसको कोई झुठला ही नहीं सकता, एक भी लाइन को झुठला नहीं सकता है। दूसरी बात आपने कहा कि ये सरकार, आपको याद है हाथरस में बेटी का गैंग रेप हुआ था, उसको अंतरराष्ट्रीय साजिश बताया, 100 करोड़ की फंडिंग बताया, सरकार को जो है बदनाम करने की कोशिश बताया और आरोपी दोषियों को के समर्थन में लोग उतर आए थे। ये हमने कठुआ में देखा, ये हमने उन्नाव में देखा, हाथरस, अंतरराष्ट्रीय साजिश, यानी कि जहां आप फंसते हुए दिखे
उससे आप आवाजों को उठते हुए देखें, उससे आप अंतरराष्ट्रीय। इसमें भी क्या हो रहा है, आप खालिस्तानी, आतंकी, नक्सली भाड़े पर लाई हुई महिलाएं बता रहे थे, शुरू से अभी तक भी कोशिश इनकी यही रही। तो अब आपने नागरिकता आंदोलन शांतिपूर्ण तो चल रहा था, लेकिन एक दिन में दिल्ली के दंगे भड़कते हैं, 50 लोगों की जान चली जाती है, और बिल्कुल जो आंदोलन शांतिपूर्ण कर रहे थे उन सबके ऊपर देशद्रोह के मामले, वो सब जेल में हैं, और जो बाहर भड़का रहे थे सरेआम उनके वीडियो हैं, इनके मिनिस्टर, नेता गोली मारो के नारों के साथ गूंज रहा था, कोई कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। तो भेदभाव तो हो रहा है। अब आप विपक्ष की बात आपने कही, आज इस देश में मैं आपको फिर कहूंगी, लोकतंत्र का जो पहिया है वो पक्ष और विपक्ष दोनों से मिलकर चलता है। पक्ष भी, सत्ता भी मजबूत होनी चाहिए, और उतना ही मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए कि सत्ता अगर अपने रास्ते से भटके तो उसे सही रास्ते पर लाना, ये काम विपक्ष का होता है। आज विपक्ष को पूरे देश में, अगर कांग्रेस की बात करेंगे, 545 में से 45 से 50 सांसद कांग्रेस के हैं। फिर भी आप देखेंगे, श्री राहुल गांधी जी, सबसे पहले इन कानूनों का विरोध किसने किया? राहुल गांधी जी, कांग्रेस ने किया। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में। पौंडीचेरी 3.5 मैं कहती हूँ राज्यों में सरकार है, पौंडीचेरी बहुत छोटा है। उनमें इन कानूनों के खिलाफ जो है प्रस्ताव विधानसभाएं बुलाकर जो है उन्होंने पारित किया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा इस किसान आंदोलन में जो जान गंवा रहे हैं उन्हें शहीद का दर्जा देते हुए सरकारी नौकरी के साथ उनके 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 जो है मुआवजे देने की शुरुआत की। ये कांग्रेस, इस कानून के खिलाफ हम लोगों ने जो है देश भर में राजभवनों का घेराव किया, आंदोलन किए, लगातार हमारा ये शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। विपक्ष, अब मुझे लगता है लोगों को समझ आ गया है कि विपक्ष संसद के अंदर काम करेगा, अब संसद के बाहर सड़कों पर भी इस तानाशाह बहुमत के दम पर सरकार को भी एक विपक्ष अब देना होगा। वो विपक्ष मैं आपको साफ कह रही हूँ, किसान के रूप में सामने आ चुका है, ये अन्नदाता है, 60 करोड़ इनकी संख्या है। इसके बाद आप देखेंगे देश में पेट्रोल के दाम इतिहास में 70 सालों में पहली बार 90 पार कर चुके हैं, और इन पेट्रोल के दाम को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ सरकार कमा चुकी है, लेकिन कमा के खर्च कहाँ किया किसी को नहीं पता। बेरोजगारी दर 9% पहुंच चुकी है। बलात्कार के मामलों से आप देख सकते हैं, रोज आपको खबरें मिलेंगी। अन्नदाता त्राहिमाम है, महंगाई है। तो मुझे ये लगता है कि अब जनता को समझ आ गई है कि एक बहुत बड़ी भूल, गलती हुई उनसे कि जितना मजबूत 303 सीटें देकर सत्ता को बनाया था उतना मजबूत विपक्ष होना चाहिए था। मैं मनमोहन सिंह जी का समय बताती हूँ। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की 10 साल सरकार थी, उस समय कांग्रेस के अपने दम पर बहुमत नहीं था, मिली जुली यूपीए की सरकार थी, और जितना मजबूत पक्ष था, सत्ता थी, उतना ही मजबूत उस समय विपक्ष भी था। सुषमा स्वराज जी नहीं रही, पर उनकी आवाज इसी किसान बिलों पर आप गूंजते हुए देख सकते हैं। तो एक मजबूत विपक्ष उस समय पर था। उस समय निर्भया भी हुआ, लोग राष्ट्रपति भवन तक अंदर घुस गए थे, इंडिया गेट तक आ चुके थे, लेकिन कभी भी कांग्रेस की सरकार ने गोली नहीं चलाई, किसी एक की जान नहीं गई। जो आज 135 किसान जान गंवा चुके हैं, गोलियां चल रही हैं, और देशद्रोही नहीं कहा था उस समय, जो आज कहा जा रहा है कि आपके विरोध में आवाज उठेगी, आप उस पे जो है देशद्रोह के मुकदमे डालेंगे, उन्हें हर तरीके से परेशान किया जाएगा। और मुझे लगता है कि विपक्ष एक समय पर मीडिया भी होता था, मीडिया समय समय पर जनता की आवाज बनकर सत्ता को आईने दिखाते थे, उनके वायदे याद दिलाते थे, और वो अपने रास्ते से भटक। लेकिन आज मीडिया भी पूरी तरह से आप देखिए सुबह से साबित करने पे लगा है कि किसान नहीं, ये गुंडे हैं, ये गुंडा किसान है, ये अराजक तत्व हैं, ये सब इनका किया धरा है। लेकिन ये नहीं मानेगी कि आपका गृह मंत्रालय, आपकी जो है पूरी लॉ एंड ऑर्डर अगर फेल होता है, अगर यहाँ आ रही है, तो जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है। और सब कुछ मालूम था पहले, इजाजत भी तो आप ही ने दी 26 जनवरी की। तो मुझे लगता है जिम्मेदारी लेनी चाहिए उन्हें, केंद्र में बैठी सरकार को। आपने जिम्मेदारी की बात करी, मतलब जिम्मेदारी तो बहुत चीजों की लेनी चाहिए जो आई थिंक द गवर्नमेंट डज नॉट डू एट ऑल। एंड इसी वजह से मुझे हमें मतलब लगता है दैट जो लेजिस्लेचर की एक जो इमेज है जो हुआ करती थी पहले, जैसा अभी आपने खुद ही बोला राइट कि निर्भया वाला जब केस हुआ था तब राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे प्रोटेस्टर्स, लेकिन कभी हमने ऐसा माहौल, ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। तो ये एक इमेज थी पहले ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग लेजिस्लेचर, ऑफ अ पीपल्स लेजिस्लेचर, वो अब धीरे धीरे खत्म हो गई है। इट हैज टेकन अ बीटिंग। एंड आप मतलब आपको क्या लगता है कि हाउ कैन वी रिस्टोर इट? क्या कुछ तरीका है, या मतलब वी आर इन अ सिचुएशन जहां आप कुछ आगे मतलब इससे बुरी ही होगी सिचुएशन? देखिए, मैं इस सरकार की आपको प्राथमिकताएं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बहुमत के साथ दूसरी बार आए हैं, और वो उस घमंड में हैं कि हमें तो लोगों ने चुना है, और उन्हें लगता है कि आज वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन परिणाम हमारे सामने है कि आज देश में जो है एक अनस्टेबिलिटी मैं कहूँ, एक लोग त्राहिमाम है। और मैं आपको
साफ कह रही हूँ, सरहदों पर अरुणाचल में सैटेलाइट इमेजेस हमने देखी हैं। अरुणाचल का भाजपा का सांसद इस बात को टीवी एनडीटीवी पर आकर कहता है कि चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश में घुस के पिछले 3 महीने में गांव बसा चुका है। कल मैं ईस्टर्न लद्दाख जो है, हमारा पूर्वी लद्दाख में जो है द हिंदू का न्यूज आया कि वहां के गांव वाले ये कह रहे हैं कि चीन उनके गांव में घुस आया और उन्हें गांव खाली करने को कह रहा है। वहां पर आप देखेंगे लद्दाख के बाद सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में भी लकुला नकला जो है हमारा, उस पे भी इन्होंने घुसपैठ की। बात ये है कि आपकी सरहदों पर जो तनाव है, कहीं ना कहीं दुश्मन घर के अंदर जब देखता है कि यहाँ 60 करोड़ किसान सड़कों पर है, आंदोलित है, देश में बेरोजगारी है, महंगाई से आम जन त्रसित है, कानून व्यवस्था नहीं है, अपराध बलात्कार बढ़े हुए हैं, इस सब चीजों का फायदा राहुल गांधी जी ने भी तमिलनाडु में कहा है, जब देश में इस तरह का सब चलता है तो दुश्मन उसका फायदा सरहद पे उठाता है। तो अगर देश में आप इन किसानों को ताकत बना लीजिए, जो आपके सामने आज खड़े हैं, आपके विरोध में खड़े हैं, आपको 3 काले कानून वापस लेना है, वापस उन्हीं से ड्राफ्ट करा के लाना है, ये 60 करोड़ किसान सत्ता के सरकार के साथ खड़ा दिखेगा। आप पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम वापस लेंगे, महंगाई खत्म होगी, आम जन जो आक्रोशित है आपके खिलाफ खड़ा, वो आपकी ताकत बनेगा। बेरोजगार युवा, रघुराम राजन जी को मैं कल सुन रही थी एक टीवी इंटरव्यू में, कम से कम नहीं तो 12-13 करोड़ युवा रोजगार मिलने की बात थी, ये तो छीन लिए गए हैं। इतने करोड़ युवाओं के तालेबंदी के बाद पिछले 1 साल में रोजगार छीना है। तो मैं आपको साफ कह रही हूँ कि चुनौतियां बहुत है, लेकिन सरकार को ये लगता है हम 5 राज्यों में चुनाव है, अभी हम इन 5 राज्यों में दोबारा जीत कर आ जाएंगे और हम ये साबित कर पाएंगे कि ये जो भी फैसले हैं वो सब सही फैसले हैं, ये कुछ भी गलत नहीं है। तो सब चीजों को चुनावों, वोटों की राजनीति, जीत और हार से जोड़कर ये सरकार देखने लगी। अब इनकी प्राथमिकता है, आपका देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है जीडीपी, और आप 25,000 करोड़ का पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। प्राथमिकताएं आपकी क्या थी? बिल्कुल। आपको क्या करना है? आपके पास अगर आपको कर्जा लेना पड़ रहा है, आपकी जीडीपी डाउन है, आपकी अर्थव्यवस्था पटरी पर अभी आने में, अभी बता रहे इस तिमाही में -25% जीडीपी जाएगा। सो आपकी प्राथमिकताएं क्या है? सरकार की प्राथमिकताओं में चुनाव है, चुनाव के प्रचार प्रसार है, एक पिक्चर तस्वीर जो उन्हें सूट करती है वो दिखाना चाहते हैं। और दूसरा मैं कहूंगी बिल्कुल सरकार को अगर गंभीरता से नहीं लेगी, ये लोकतंत्र है, इन्होंने सत्ता सौंपी है, ये जब अपनी ठान लेंगे, आज किसान कल युवा, करोड़ों युवा इस देश का बेरोजगार है, सड़कों पर आ जाएगा, वो सबसे बड़ा विपक्ष इस सरकार के सामने बनकर खड़ा होगा, तो ये सरकार शायद अपना समय भी पूरा नहीं कर पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। चाहे उसके पास आज जितना मर्जी बहुमत है, उनका काम करना मुश्किल हो जाएगा अगर यही हालात देश में रहे तो। You're right, आपने अभी समय की बात करी कि मतलब तो आई ऑल्सो थिंक कि प्रेजेंटली हमारा जो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज हैं वो बहुत ही थोड़ा कम टाइम के लिए फंक्शन कर रही है। जैसे अभी आपने खुद ही बताया कि एक सेशन था वो रद्द हो गया, अब कोरोना की वजह से, मतलब सेशन रद्द करने के इनको कोई ना कोई रीजन चाहिए होते हैं। क्या आपको लगता है कि मतलब जो इतना गलत ये डिसीजंस लेते हैं उनको हम ज्यादा बेहतर तरीके से अपोज कर पाते हैं अगर एटलीस्ट ड्यूरेशन ऑफ सिटिंग्स थोड़ी ज्यादा होती? मतलब अगर पार्लियामेंट बैठ ही नहीं रही है, मतलब सेशन हो ही नहीं रहा है, तो मुद्दा उठाया भी कैसे जाएगा? आपकी बात ठीक है। लोकतंत्र के अंदर एक लोकतांत्रिक इकाई है, संसद है, विधानसभाएं हैं, बिल्कुल उन्हें खोलना चाहिए, और ऐसे समय में तो अधिक समय के लिए खोलना चाहिए जब आपके सामने, देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती भरा समय है, तब तो और संसद खुलनी चाहिए ताकि लोकतांत्रिक तरीकों से चर्चाएं हो पाए। लेकिन जब वो दरवाजे बंद होते हैं तब संसद नहीं, सड़क का रास्ता चुना जाता है, जो इस किसान आंदोलन में आप देख भी रहे हैं। संसद खुलता, विंटर सेशन होता, उससे पहले जब कानून लाए गए जिस सेशन में उस पर प्रश्नकाल लिए जाते, वोटिंग होती, और अभी भी बजट सत्र में ये मांग है, तो जरूर वही होगा, सब कुछ होना भी वही है। लेकिन ये जो पहल है, हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिन्हें सांसद विधायक वोट देकर लाखों की तनख्वाहें, ल्यूजिस डेली में बंगले, सुविधाएं दी गई हैं, ये पहल उन्हें करनी है, पर मुझे लगता है कि वो उनकी तरफ से पहल नहीं हो रही। तो अब लोगों को मांग बिल्कुल करनी चाहिए। और अभी मैं आपको ऑक्सफैम की जो है रिपोर्ट आई है, मैं आपको और बताती हूँ, अमीर और गरीब के बीच का जो समानता है, क्योंकि आपने अभी प्रियम्बल पढ़ा है संविधान का, वहां समानता की, आर्थिक समानता की बात है। ये जो अमीर गरीब की खाई थी उसे भरने की बजाय हुआ ये है कि ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि मुकेश अंबानी जी की जो आय है, कमाई जो है,
प्रति घंटे 90 करोड़ प्रति घंटे 90 करोड़ हो गई है। और एक देश के, भारत के एक गरीब मजदूर को उतना कमाने के लिए 10,000 साल इंतजार करना पड़ेगा। वही उन्होंने कहा है कि प्रति सेकंड अगर आप मुकेश अंबानी जी की कमाई लेंगे तो देश के मजदूर को 3 साल लग जाएंगे, जो है प्रति सेकंड वाली कमाई। तो ये जो खाई है ये भरनी है, इसे और गहरा नहीं करना है। और आज हम देख रहे हैं कि मात्र जो आरोप लगते हैं कि ये सरकार पूंजीपति मित्रों की सरकार है। 4 गुजराती इस देश को चला रहे हैं, एक देश के प्रधानमंत्री हैं, एक रक्षा मंत्री हैं और 2 एक अदानी और अंबानी। ये 4 गुजराती बैठकर देश और व्यवस्था, इकोनॉमी और इन्हीं में सत्ता कहे, पैसा कहे, देश की इकोनॉमी कहे, सब इन 4 लोगों पर है, जो आरोप भी लग रहे हैं। और ये गणतंत्र है, 135 करोड़ का भारत। कोई चाहे कि मात्र 4 लोग बंद कमरों में फैसले लेकर के नोटबंदी का फैसला रात भर में कर दिया, तालेबंदी का फैसला कर दिया, जीएसटी आप ले आए, आपने सब कर दिया और उसके परिणाम अच्छे होते तो शायद आप और हम आज चर्चा नहीं करते। आज हम बिल्कुल। सरकार की वाहवाही कर रहे होते, लेकिन आपके फैसले को आपको देखना, उसका आउटकम क्या आया कुछ सालों के बाद। नोटबंदी 2016 में हुई, आज 21 में हम प्रवेश कर गए हैं। आप उसके आउटकम तो देखिए, आउटकम क्या हुआ आपके फैसलों से। तालेबंदी के बाद क्या आउटकम आपका रहा। तो मुझे लगता है सरकार आउटकम पे नहीं सिर्फ फैसले कर रही है, और अगर बुरा होगा तो अपने पैसे के दम पर, अपनी जो ताकत है, मैं कहूंगी जो जुडिशरी कहें या आपकी संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके, मीडिया का इस्तेमाल करके, कानूनों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करके आपका जो मुंह है, जबान जो है, उठती आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है लोकतंत्र में अगर आप देखेंगे कि सबसे बड़ा आंदोलन तब मैं पैदा नहीं हुई थी, 75 का जो है आंदोलन था, वो जेपी आंदोलन। उसके बाद हम लोगों ने अपने होशो हवास में देखा तो अन्ना आंदोलन को, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई थी, पूरा सत्ता परिवर्तन हो गया, पूरा भाजपा, संघ, आरएसएस पूरी तरह से मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ उस आंदोलन का हिस्सा था। आज वो आंदोलन का हिस्सा कांग्रेस सपोर्ट करती है, कांग्रेस किसानों के इस आंदोलन को। तो कहा जाता है ये चंद मुट्ठी भर गुमराह किसान है, किसानों के दम पर कांग्रेस खेल रही है। हमने तब नहीं कहा था जब अन्ना आंदोलन, निर्भया आंदोलन हो रहा था कि भाजपा जो है इन आंदोलनकारियों के कंधों पर रखकर सत्ता की सवारी करना चाहती है, जो आज हकीकत है। लेकिन आज हम अगर किसान, अन्नदाता, बेरोजगार, महंगाई के खिलाफ राहुल गांधी जी कांग्रेस बोलती है तो आरोप लगते हैं, लेकिन हमें सब आरोप स्वीकार है, क्योंकि जनता समय आने पर सब बिल्कुल दूध और दूध पानी की तरह साफ देखेगी। That's true. I mean, जो सच्चाई है वो अभी लोगों के सामने कुछ अलग सच्चाई पेश करी जा रही है जो एक्चुअली में नहीं है। मतलब, लेकिन जैसा कहा जाता है कभी ना कभी तो पर्दा उठेगा ही, एंड पीपल विल रियलाइज कि वो किस चीज को, किस गलत रास्ते की तरफ उनको ये गवर्नमेंट ले जाने की कोशिश कर रही है। Would you like to say something in the end as a message to all the young people जो अभी आपको देख रहे हैं? It is Republic Day and it is a very important day for our country and it has become even more historic today. तो आप कुछ एक फाइनल मैसेज कुछ कहना चाहेंगी, एक रे ऑफ होप की तरह कुछ आप हमें बोलना चाहेंगी? लास्ट में सिर्फ UWC डायलॉग के जो भी ऑर्गेनाइजर, आप सबका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे अपना ये मंच जो है वो दिया कि मैं लोकतंत्र की इस उठती आवाजों को आपके सामने रख पाऊं। आपका धन्यवाद। और जो आपके सुनने वाले हैं या इस वीडियो को जब आप हमारी बातचीत को शेयर करेंगे, हमने शुरू में संविधान के प्रेम्बल को, पंक्तियों को पढ़ा है। इसमें जो लिखा है, मैं निवेदन यही करूंगी कि इसमें लिखा है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, प्रतिष्ठा, अवसर, समता। मैं सबसे ये कहूंगी, जातियों से उठिए, धर्मों से उठिए। ये देश अनेकता में एकता हमारी ताकत है, लेकिन आज कोशिश की जा रही है जाति हो, धर्म हो, राष्ट्रवाद। हमें साबित करने की जरूरत नहीं है किसी को, हाँ, कि कोई भारत माता की जय बोलेगा या राष्ट्रगान पे हम लोग खड़ा होंगे तभी साबित होगा। बहुत से विकलांग लोग नहीं खड़े हो पाते, तो वो क्या मतलब देशभक्त ने। तो मैं बस यही कहूंगी, ये जो फेक एक बनाया जा रहा है आपकी तस्वीर के सामने कि देशभक्त वस्तु देशद्रोही और जो आवाज उठाएगा वो गलत है, और यहाँ पर एक ही राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र हमारा अखंड भारत, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान सब होगा। मुझे लगता है कि आज 21वीं सदी में हम सबको ये देखना है कि इन सब चीजों से ऊपर उठ के एक ही चीज, ये देश एक है,
एक कानून, एक संविधान और एक नागरिक के तौर पर सबको देखा जाएगा। ये जो खाइयां मैंने आपको बताई असमानता की, उसे हमें भरना होगा और न्याय की ओर बढ़ेंगे तो जरूर। और उसको लेकर मुझे लगता है जो पढ़ा लिखा युवा है, जो जागरूक गांव में बैठा युवा है, सोचिए मत पड़िए इन चीजों में। आपको फंसा कर, आप में फूट डलवा कर सिर्फ अपनी सत्ता को कायम रखने का प्रयास अंग्रेजों के समय से मैं देख रही हूँ, अब आज भी हो रहा है। यही संदेश के साथ आप सबसे कहूंगी, एक रहिए, मजबूत रहिए। It is definitely food for thought for all of us. And I would like Varun to conclude the session. And thanks a lot, Alka ji, for joining us. Varun, please take over. Thank you. Good evening, everyone. First of all, I would like to thank Alka ji for taking time out on this important day and spending time with us and sharing her thoughts with us. Um, thank you, ma'am, for sharing your thoughts on Thank you so much. जैसे सत्ता पर बैठे वाले लोग, उनका डाइवर्ट एंड रूल का टेंडेंसी जो है उसके बारे में आपने चर्चा किया. And you also laid out a broad vision on how the opposition is working presently, on how the next few months and years are going to be. Today, since it's Republic Day, before I conclude, I would like to mention a quote of Dr. Rajendra Prasad, where he says, "After all, a constitution, like a machine, is a lifeless thing. It acquires life because of men who control it and operate it. And today, India needs nothing more than a set of honest men who have the interests of the country before them." I think this is a very apt quote for us. And today, what India needs is a new government, a new set of people who would keep the interests of the country and all sections of the country before it than any one person's ego, which has caused what is panning out in Delhi today. I thank you all for taking out time today and joining us, and I would conclude the session. Thank you. Thank you so much. Jai Hind.